اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں سال بھر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے معیشت کو بہتر کر دیا ہے اور سابق حکمرانوں نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن اس کے برعکس یہ دعویٰ کرتی ہے اور کرتی رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ لیکن اب کے بار چونکہ نیا پاکستان ہے، اس لیے ہمیں نئی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یوں کہ خود اس حکومت کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے کچھ عرصہ قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو یہ کہا کہ اس حکومت کے دوران اور اس حکومت کے وزراء کے ہاتھوں معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ ہو جا رہی ہے۔ جو کیپٹنز آف دی شپ ہے نا، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں۔ کس نے ہمیں روکا کہ ہم یہ ایس او ایز جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں؟ یہ جس طریقے سے چل رہی ہیں، ہم ابھی تک 2.5 سال میں ان کے ایم ڈیز بھی نہیں لگا سکے، ان کی مینجمنٹ بھی نہیں چینج کر سکے۔ یہ کیسا مطلب ایک قسم کا ہماری پرفارمنس ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ کسی حکومت کے وزیر خزانہ خود اس حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ٹھیک نہیں رہی۔ سب سے بڑا وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام لائے اور آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کور انفلیشن 7% پہ پھر رہی ہے اور آپ کے 13.25% پہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے، اور انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو 165 پہ لے کے چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ٹیرفس جو ہیں وہ بڑی مطلب زوروں سے بڑھا دیے، الیکٹریسٹی، گیس وغیرہ اور پیٹرولیم۔ تو یہ سارے جب یہ ٹیرفس وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے اکانومی کو بریکس لگ گئیں، ٹوٹل بریکس لگ گئیں آپ، بلکہ اکانومی جو ہے وہ تقریباً 0.04% پہ آ گئی۔ تو اس کو ایک قسم سے ہم نے کہنا تھا کہ ہم سٹیجز میں کریں گے، لیکن انہوں نے سب اپ فرنٹ لوڈ کروا دیا، اور وہ ان کے لیے تو آسان ہو گیا، لیکن عوام کے لیے، اکانومی کے لیے وہ بہت برا تھا، اور اس کو اب لے کے واپس جانا گروتھ موڈ میں اب ایک یہ ڈیفیکلٹی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو معاشی ٹیم کے مختلف ارکان ہیں وہ اور حکومتی ترجمان شوکت ترین کے دعوے کے برعکس یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، اور جی ڈی پی کا جو تخمینہ خود اس حکومت نے لگایا ہوا تھا وہ حکومت کے اپنے لگائے ہوئے اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے، یعنی کہ جو ہم نے اپنے لیے ہدف سیٹ کیے تھے، اس سے الحمدللہ زیادہ اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے۔ یہ معاشی ترقی جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور اگلے سالوں کے اندر اس میں مزید تیزی جو ہے ان کو دیکھنے میں آئی۔ ہم نے مور اور لیس بریک ایون کیا، 0.4% صرف ہمارا پچھلے سال نیگیٹو تھا، اور اس سال وہ جو اتنا بڑا شوق آیا ہے لوگوں کو، وہ صدمے سے نہیں ریکور ہو گئے کہ یہ گروتھ آگ کدھر سے گئی 3.94% کی۔ تو ہم نے 2 سال بعد پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ اچانک نہیں ہے، یہ کوئی پالیسی تھی، کوئی سوچ تھی جس کو کنسسٹنٹلی فالو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا گروتھ ایسٹیمیٹ 4.8% کا ہے، امید ہے اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تو ہم جب ماضی کا تجزیہ کرتے ہیں تو پچھلے سال حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا جی ڈی پی کے بارے میں، جو تخمینے لگایا تھا، سال کے آخر میں وہ اس سے بہت کم نکلا۔ پھر جب حکومت نے بجٹ کے دوران جو جی ڈی پی گروتھ بتائی وہ بالکل دوسری نکلی۔ خود اس حکومت نے جو ریوائزڈ اسٹیمیٹ جاری کیے اس میں کچھ اور تھا، جبکہ عالمی اداروں نے اس ریوائز اسٹیمیٹ کو بھی غلط قرار دے دیا۔ اب چونکہ ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے حکومتی دعووں پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے دعووں کو بھی منوعاً تسلیم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی بحث رہتی ہے یا جو ماہرین کی بحث رہتی ہے تو وہ معاشی ٹرمینالوجیز کے گرد ہی گھومتی ہے۔ جب بھی بجٹ کا وقت قریب آتا ہے تو آپ سنتے ہوں گے جی ڈی پی، جی این پی، پھر ڈیفیسٹ بجٹ، پھر ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، پھر اسی طرح فسکل ڈیفیس
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI, फिर एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट, तो इन इस्तिलाहात के ज़रिए ही वो बहस की जाती है। मसलन इस वक्त अगर हुकूमती तर्जुमानों को आप सुने तो वो ये कहेंगे कि जी GDP ग्रोथ वो इतने % हो रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के माहिरीन का दावा ये है कि GDP ग्रोथ के हवाले से हुकूमती दावा गलत है। फिर ये भी है कि ये दोनों तरफ से जो अदाद शुमार पेश किए जाते हैं तो वो ज़ाहिर है कि एक तो हुकूमती इदारों के बनाए हुए होते हैं, दूसरा फिर स्टेट बैंक जैसे इदारों के बनाए हुए होते हैं, और तीसरा फिर जो आलमी इदारे हैं मसलन वर्ल्ड बैंक या IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के इदारे वो मुख्तलिफ़ ममालिक की मईशत को असिस करते हैं और फिर वो अपने आदाद शुमार पेश करते हैं। और ज़ाहिर है कि इनमें से हर एक का अपना अपना एजेंडा भी होता है। बाज़ औक़ात ये जो मुख्तलिफ़ इशारे होते हैं वो तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल कुछ और होती है। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हुकूमती दावों पे एतबार करने की बजाय या फिर अपोजिशन के दावों पे और एतराज़ात पे एतबार करने की बजाय हम ग्राउंड पे जाएं और जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी हैं बराह रास्त उनसे पूछें कि उनकी मईशत बेहतर हुई है या कि ख़राब हुई है, और उनका जीना आसान हो गया है या कि मुश्किल हो गया है। इस प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की कि हम किसी एक खित्ते या किसी एक तबके तक महदूद न रहें। हमने गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और कराची से लेके चतराल तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की राय मालूम की है अपने नुमाइंदों के ज़रिए। फिर हमने उसमें ये भी एहतमाम किया और ये भी कोशिश की कि कोई एक तबका उसकी राय सामने ना आए। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से किसान की राय भी सामने आ जाएं, इसी तरह नौजवानों की राय भी सामने आ जाएं, जो सरकारी मुलाजिम है उनकी राय भी सामने आ जाएं, और जो दुकानदार हैं उनकी राय भी सामने आ जाएं, और जो प्रोफेसर या टीचर्स हैं उनकी राय भी सामने आ जाएं। हमने अपने नुमाइंदों के ज़रिए उनके सामने चंद बुनियादी सवालात रखे। मसलन एक बुनियादी सवाल ये था कि उस पाकिस्तानी की जो किसान है या ताजिर है या दुकानदार है या नौजवान है या बेरोज़गार है वो या उस्ताद है, तो उनकी मईशत अपनी क्या 2018 में बेहतर थी या कि अब बेहतर है। फिर इसी तरह हमने इन सब पाकिस्तानियों के सामने ये सवाल रखा है कि हुकूमत तो माशी बेहतरी का दावा कर रही है, लेकिन क्या वो पुरुम्मीद हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मईशत बेहतर हो पाएगी या कि नहीं, वो इस हवाले से फिर उम्मीद नहीं है या मायूस है। इसी तरह हमने तीसरा सवाल इन पाकिस्तानियों के सामने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सामने ये रखा कि हुकूमत मईशत की अबतरी के लिए, महंगाई और बेरोज़गारी के लिए या करप्शन के लिए साबका हुकूमतों को ज़िम्मेदार करार दे रही है। तो क्या वो पाकिस्तानी शहरी वो भी उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? तो नाज़रीन, आइए आपको पाकिस्तानियों की कहानी या अवाम की कहानी अवाम की ज़ुबानी सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ख़ुद आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है कि उसकी मईशत बेहतर हुई है या कि ख़राब हुई है। तो सबसे पहले चलते हैं गवादर, जो कि समंदर के साहिल पे वाक़या है, बलूचिस्तान का अहम तरीन इलाक़ा है, और इस वक्त सीपेक के तनाजुर में अगर हम देखें तो गवादर से ज़्यादा अहम शायद पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए कोई दूसरा इलाक़ा नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि गवादर के लोग क्या कहते हैं। पहले बेहतर थी इसलिए कि आज इस मुल्क में अभी हमारे मुल्क में मज़दूर तबका इंतहाई पिस कर रह गई है। महंगाई का आप देख लें, महंगाई आसमान तक पहुंच चुकी है।
تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس سے بہتری کی امید اور نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھو زمینداروں کے کیا حال بنا ہوا ہے، زمینداروں کو ابھی اس پانی نہیں مل رہا ہے، سندھ چیخ رہا ہے، بلوچستان چیخ رہا ہے، یہاں پانی کے مسئلہ ہے، یہاں نہ بیج گورنمنٹ دے رہا ہے، نہ یہاں سے اتنا ٹیکس بڑھا رہا، کوڑی کے دام سے لوگوں کو پسند لیتے ہیں، یہاں سے جو بڑا مافیا جو ہوتے ہیں، میلز ہوتے ہیں، وہ تو فائدے میں، وہ کیونکہ ان کی لو بھی کسی فائدہ ہے، لیکن عام زمیندار کے لیے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں یہ عمران خان نیازی کون سا اس نے ترقی لایا ہے ملک میں، کون سا یہ معاشی حالت صحیح کیا ہے؟ یہی اس کا نواز شریف کے ساتھ جھگڑا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں انارو نہیں دوں گا، وہ جا رہے ہیں۔ کون سے پیسے لایا اس نے ان ڈکیٹوں سے اور ان لٹیروں سے؟ کہاں سے پیسے لائے اس نے؟ معیشت نہیں ہے نا یار، معیشت یہی ہے جو ہم فقیر بن گئے۔ پہلے تو ہم پھر بھی بہتر تھے، ابھی ہم کیا فقیر ہیں؟ ہم نے جا کے بازار سے 10 روپے کی چیز ابھی 100 روپے پہ لگا ہوا ہے یار، یہ کیا مذاق ہے؟ گوادر کے لوگوں کی رائے آپ نے جانی۔ اب بلوچستان ہی کے اور مکران ڈویژن ہی کے ایک اور اہم علاقے خزدار کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں کے غیور بلوچ وہ پاکستانی معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی حالت معاشی لحاظ سے بہتر ہوئی ہے یا خاکم بدہن خراب ہوئی ہے۔ سر اتفاق نہیں ہے، میرا تو دل کرتا ہے ابھی عمران خان کا حکومت گر جائے، صحیح ہے؟ یہ ایسا سمجھو ظلم ہے۔ پہلے والے یوریا بھی ملتا تھا سر 1100-1200 روپے کٹا، ابھی 2000-3000 روپے۔ 1000 کا اگر آپ نے بوتل لے لے وہ بھی ایسا سمجھو 3-4 ہزار روپے ملتے ہیں سر۔ ایسا سمجھو کسان بندے سارے ایسا سمجھو مر گیا سر۔ پہلے ہمارے طرف جو گراہک آتے تھے بہت زیادہ آتے تھے، ابھی ہم پورا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں لیکن ہماری طرف وہ گراہک نہیں آتے ہیں، صرف ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ملازمین کی تنخواہیں خاص کر پی گورنمنٹ نے بہت 50% تک اضافہ کیا ہے اور ہر سال ان میں ہر بجٹ میں ان کے لیے خاطر کا اضافہ کیا ہے، اور اس گورنمنٹ سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ابھی ملازمین کو ریلیف دے گا۔ اس کے وزراء صاحبان جو ہیں نا غلط اعداد و شمار وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اس سے نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ خزدار سے آپ کو لے جاتے ہیں کوئٹہ جہاں تحریک انصاف اور باب پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے۔ اس شہر کو سانحات کا شہر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس شہر نے ناقابل فراموش سانحات دیکھے ہیں۔ وہیں معاشی ابتری نے بھی وہاں کے باسیوں کو ماضی میں بری طرح متاثر کیا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں زبان زد عام ہے۔ آئیے وہاں کے کسان، مزدور اور دکاندار وغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار ان کے نزدیک کون ہے اور کیا ان کی زندگی حکومت کی تبدیلی کے بعد بہتر ہوئی ہے یا کہ خراب۔ 3 سال میں تو کوئی بہتری اس میں نظر نہیں آئی اور اب بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص بہتری آئے گی، کیونکہ حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں بیانات میں کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، معاشی حالات بہتر بنائیں گے، کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہے کہ مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزوں نے مال ذخیرہ کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 2 دن تک اعلانات تو کیے جاتے لیکن عمل درآمد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ مایوسی کے شکار ہیں۔ دیکھیں پر امید تو ہم ہیں، پر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ 2 وزارتیں جو خزانہ ہے وہ چینج کر چکے ہیں اور ثمرات جب تک عام عوام کو نہیں ملیں گے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومتی معاشی پالیسیاں ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو پچھلے 30-35 یا 40 سالوں کا ملبہ ہے اس کو صاف کرنے میں ٹائم تو لگے گا، پر اس میں حکومت اپنی کوتاہی چھپا نہیں سکتی یا یہ ملبہ ان پہ ڈال کے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی۔ معذرت کے ساتھ مجھے اگر شوکت ترین جیسے لوگ کئی بار اور بھی آزما چکے ہیں، اگر وہ بول رہے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ اچھائی ہوگا، رزلٹ دکھائے۔ جب سے عمران خان آیا ہے، لیکن عمران خان نے ایسا دفاعی مچائی ہے کہ پورا ملک میں جو ہر بندہ، ہر مزدور، ہر غریب، ہر ملازم جو ہے وہ اس سے بے روزگار ہے، غریب ہے، تباہ ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں غریب کو مٹاؤں گا، لیکن اس نے واقعی غریب کو مٹایا، غریب کو مٹانے جا رہے ہیں۔
गरीब को भूख से मराना चाह रहा है। मेरी ज़िंदगी में इतना नायल हुकूमत मैंने नहीं देखा है ज़िंदगी में, न मैंने इतना वो बंदा देखा है कि इस तरह वज़ीर-ए-आज़म है जैसे वो अपने आप को नहीं समझते कि मैं क्या हूँ, लेकिन ये मुल्क को कैसे चला सके। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। चलते हैं कराची, जहां रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी इस वक्त भी बरसर इक़्तिदार है और माजी में भी लंबे अरसे तक वो बरसर इक़्तिदार रहा। शहर कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, जहां इस वक्त मरकज़ और सिंध हुकूमत पानी के मामले पर तो आमने सामने खड़ी नज़र आ रही हैं और बेरोज़गारी, महंगाई, अमन व अमान की अबतरी के लिए एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। ऐसे में कराची के अवाम क्या सोचते हैं, आइए कराची के अवाम की ज़ुबानी सुनते हैं। हम आम आवाम हैं, हम जानते हैं कि आवाम के क्या हालात हैं। डॉलर के ऊपर या नीचे होने से मईशत का कुछ नहीं होता। जो आवाम के हालात हैं, जो आवाम के दर्द हैं, वो हम जानते हैं, आवाम ही जानते हैं। सो मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कदम उठाए हैं, कोशिश अच्छी है इनकी, लेकिन इन्होंने भी कोई ख़ासी कामयाबी नहीं हासिल की। अभी ज़रदारी और नवाज शरीफ थोड़ी है, अभी तो इमरान खान बैठा हुआ है सीट के ऊपर, उन्हीं की है सब कुछ जो है। कोई नहीं, गरीब आदमी है, शाम को रोते हुए घर जाते हैं, सारा दिन सड़कों में, कोई पीने आता ही नहीं है, कोई तकदीरी आता है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त हालात सही थे। नवाज शरीफ जो था ना सर पहले, उसमें महंगाई कम थी, कर्जे लिए तो महंगाई तो कम थी ना। इमरान खान बोल रहा था कि अब महंगाई नहीं होगी, तब्दीली आ गई, ये तब्दीली है। जो भी हुक्मरान आते हैं वो यही बोलते हैं कि जी पीछे वाले ये करके गए, लेकिन मसला ये होता है कि हम गरीबों का, कि हम गरीबों को किस तरीके से लेके चलना है। हम लोग के लिए कोई एडवांटेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जो भी हो रहा है सब अमीरों को। अब हम लोग डेली बेसिस वाले हैं, अब काम पे जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, पैसे नहीं मिलते। क्या वही जब देखो नवाज शरीफ, जरदारी, जब देखो नवाज, आप उनको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो ये देखो। नवा पाकिस्तान बनाएगा तो ये मुल्क तबाह करेगा, कुछ ही नहीं बनाया। उसकी हुकूमत में तो इतना नहीं था, ये जो अभी आया है उसमें ज़्यादा महंगा पे हो गई है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूर घूम रहे हैं बेरोज़गार। माजी में जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अभी तो बेहतर करे। ये भी कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, अब कब होगी, 2.5 साल तो हो चुके हैं सर, वेट करते करते, इंतज़ार करते करते। महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं है। गरीब बंदा क्या करेगा? सुबह से इतना निकलते, इतना काम करते कि 1,000 1500 1,000 मिलता है महीने का, उसमें क्या करेगी? हर बंदा रो रहा है, बोला काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, काम धंधे नहीं है। हम लोग यहाँ खड़े होते हैं ना, कोई चुपाती का पूछने आते हैं, हमें पता होता है, बोलते हैं भाई चुपाती की कहीं डिप्टी है, नहीं, हम बोलते हैं भाई नहीं है काम धंधे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, कोई सलामती नहीं है किसी की। गरीब से गुर्बत और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जहांगीर तरीन का केस देख लो, कैसे ख़त्म किया इन लोगों ने, मिनट लगाया ख़त्म कर दिया। जो कर्जे $95 से $116 $116 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, वहाँ पे मैं उम्मीद करूं कि हमारे इंटरेस्ट रेट भी हम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमारी किस्तें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस मुल्क की। वहाँ वो ये मुल्क आगे चलकर कैसे सर्वाइव करेगा, ये सर हमारे जैसे छोटे मासूम बच्चों के समझ में नहीं आता। तालीम और सेहत और समाजी खिदमात पर, अगर अवामी खिदमात पर बजट का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लगाया जाएगा तो यकीन बात है कि इस मुल्क से ना गुर्बत ख़त्म होगी, ना माशी बदाली के जो असरात हैं वो ख़त्म होंगे, और दिन ब दिन हमारा जो पैसा है, हमारा रुपया है, वो डीवैल्यू होता रहेगा, और महंगाई का जो जिन है वो कभी भी काबू नहीं आ सकता। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और जो खुद इनके इकोनॉमिस्ट हैं वो खुद इनको कंट्राडिक्ट करते हैं। जो कुछ ये बताते हैं वो असल जब सूरत हाल आती है या स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो कुछ और मामलात होते हैं। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जो वेलफेयर, जो सोशल सेक्टर था, वो क्लैप्स करता जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो IMF, वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर चल रहा है, और पूरा जो एक आलमी मालियाती सरमाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी लोकल पॉलिसी ख़ास तौर पर आपके फाइनेंस के हवाले से या सोशल सेक्टर के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बन रही। दिन ब दिन सब्सिडीज़ का खात्मा किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े बहुत जो मराहत, जो सहूलियात जो लोगों को हासिल थी, उनका भी खात्मा किया जा रहा है, और हर चीज़ आपको इट्स ऑन आपको परचेज़ करना है। हमारे तो पूरे मुल्क की माशी हालत नीचे ही आ रही है। आप ये देखें कि 5.6 का
इंडिकेटर था पहले उस वक्त आपके आपकी ग्रोथ का, और अब वो नीचे से नीचे वो माइनस में जा रहा है, तो हम कैसे कहते हैं? इंडिकेटर तक नहीं शो करे। इनकी बातों करने से और कहने से और सब अच्छा है सब अच्छा कहने से अच्छा तो नज़र नहीं आएगा। कराची से रुख करते हैं पाकिस्तान के दिल पंजाब के इलाके लिया का। लिया जो कि जनूबी पंजाब में वाक़या है और जहां इस वक्त जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं। पंजाब के इस पसमानदा ज़िला लिया और वहां के किसानों, बेरोज़गार नौजवानों और दुकानदारों से पूछते हैं कि वो गुर्बत, बेरोज़गारी और पसमानदगी का ज़िम्मेदार किसे करार देते हैं, और ये कि 2018 की बनिस्बत क्या आज उनकी माशी हालत बेहतर हुई है या कि ख़राब हुई है। अगे डीजल कित्थे सी, अज कित्थे है? साडे कोल पैसा नहीं हुंदा, वाही साडी सुक्की जांदी है। अगली हुकूमत आई तो असी खुशहाल हस्ते, खादां कित्थे वग गईयां, डीजल कित्थे वग गए, मामले कित्थे वग गए। हुण 2 सालां दा तो वो अडवाना रखी बैठा, पता नहीं साडे नाल पिछू की बनाना सू। पटवारी की नौकरी के लिए सीटें आई हुई हैं, हमने दरखास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल हमें यही बात सुनाई जा रही है कि ये MPA का, ये MNA का कोटा है, हमें कोई मुलाजमत नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट अपने इस चीज़ की रेट कायम करने में नाकाम हो चुकी है। हमें जो बात नज़र आ रही है मईशत के हवाले से देखा जाए तो मईशत का भरकस निकल चुका है। मईशत की तरफ से गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हकीकत जाने हम जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारी तनख्वाह किधर गई। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ताजर खुशहाल हैं, यही ताजरों को फ्री हैंड जो परवेज़ इलाही के दौर में मिला था वो बेहतरीन था, या अब जो मौजूदा दौर इमरान खान का जा रहा है, जो दरमियाना दौर आया था उसमें बेजा शहबाज शरीफ और उन हुकूमतों ने ताजरों को अपनी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए बहुत ज़्यादा तंग किया था। लिया से अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दिल, पंजाब के दिल लाहौर का, जिसे ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है, जिस पर लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून हुक्मरान रही और अब वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। तो लाहौर के अवाम की राय जानते हैं कि उनकी माशी हालत पिछले 3 सालों में बेहतर हुई है या ख़राब हुई है, और वो माशी अबतरी के लिए इमरान खान को और उनकी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देते हैं, या कि मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हुकूमतों को ज़िम्मेदार करार देते हैं। और लाहौर के अवाम से ये भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत की बेहतरी के बारे में पुरुमीद हैं या नहीं। ये सारी जो तकलीफ़ इस गवर्नमेंट पे आई है अवाम के जो शक्ल में, वो उसको उतार रहे हैं। बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, सिर्फ 2 साल सब्र करना पड़ेगा। 2018 में जो खाद, स्प्रे या ज़रूरी अद्वियात थी उसकी कीमतें बहुत कम थी। आज की निस्बत वो खाद, स्प्रे और जो ज़रूरी अद्वियात है उसकी कीमत ज़्यादा है। बेशक गो के किसान की जो अजनास हैं उनकी मार्केट वैल्यू बड़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर वहीं खड़ा है 2018 की तरह आज भी। और जो ये हुकूमत दावे कर रही है कि हमारा किसान मजबूत हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इनकी कारकर्दगी भी वैसी है जो 2018 की गवर्नमेंट थी। वही पुलिसियाँ हैं, वही उनके मशीर हैं, वही उनके खजाना का जमादार हैं। ये बदल का ला रहे, ये कैसे हो सकता है कि ये चेंज कर सके? ये मुमकिन नहीं है। तब्दीली का जो नारा था ना, वो इस वक्त फ्लॉप हो चुका है। ठीक है, ये 1400 अरब रुपया डेली की करप्शन हो रही है। खान साहब कहते थे अब वो करप्शन भी नहीं हो रही, वो तो खाली करप्शन पे ही मुल्क को चलाना चाहते थे। अभी जो है ना, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये जो ऑयल है ना, ये 600 रुपये का पिछली हुकूमत में था, यानी कि अपना मियाँ साहब की हुकूमत में। अब ये यही जो है ना चीज़ 270 रुपये 75 रुपये लीटर में पड़ रही है, यानी कि ये 1500 रुपये का कार्टन हो चुका है। ठीक है, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ों के रेट, ये 110 रुपये 20 रुपये किलो वाली चीज़ 260 चल रही है, 260 चल रही है। मिर्च का रेट बढ़ गया, जो भी कस्टमर आता है वो चीखता है। अब 85 रुपये वाली चीनी हुकूमत ने एड़ी वाला जोर लगा के सिर्फ रमज़ान में दी है चीनी, और वो भी 85। पहले क्या था, तोड़े का रेट था 2550 रुपये, 2250 रुपये की भी ख़रीद हम करते रहे हैं, 2550 और अब 4750 रुपये रेट है। यानी कि 100 रुपये कस्टमर को बेचें तब हमें 150-200 रुपये किराया
जो है ना वो बचता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। 600 रुपये में कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है जो है ना वो अब सारे के सारे जो है ना वो मिडिल क्लास तबका भी सफ़ेद पोश हो चुका है। हर चीज़ का अंडा है, अंडे का रेट ही नहीं नीचे आ रहा। बेकरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अंडे का होता है। उसके बाद सारा दिन हमारा यही मसला होता है, जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है यही कंप्लेन है कि रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम रेट कंट्रोल में कैसे लाएं। हुकूमत जो भी सब्सिडी दे वो अमली तौर पे दे, खाद के ऊपर है या बिजली के ऊपर है, वो अमली तौर पे दें। सिर्फ बातों में या ख़बरों में हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। मेडिसिन की जो कीमत में ना इस 1 साल के अंदर जो इजाफा हुआ ना, तो वो 30 से तकरीबन 40% तक इजाफा हो चुका है मेडिसिन के अंदर। अक्सर गरीब आवाम जो प्रेस्क्रिप्शन लेके आते हैं, डॉक्टर की लिखी हुई जो पर्ची वगैरह लेके आते हैं इधर, तो 1 हफ्ते की मेडिसिन हो, वो कहते हैं हमें ना 1-2 दिन की मेडिसिन दे दे, रेट ज़्यादा की वजह से। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल से मुतालिक ये जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, अब रुख करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का, जहां इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सियासी जोड़ तोड़ के बाज़ार सज चुके हैं। उम्मीदवारों की वफ़ादारियां तब्दील करने के लिए तजूरियों के मुँह खोल दिए गए हैं। वहां गुज़िश्ता 5 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, और अब जब इंतखाबात आने वाले हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद के मज़दूर, किसान, तालिब इल्म, दुकानदार और मुलाजिमीन महंगाई और बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार किसको करार देते हैं, और उनकी इक़्तिसादी हालत क्या 2018 की बनिस्बत बेहतर हुई है या कि ख़राब हुई है, ख़ुद उनकी ज़ुबानी जानते हैं। झूठ बोल रहे हैं, रोज़गार कोई भी नहीं है और कोई काम कारोबार है ही नहीं है। हम रक्शे चला रहे हैं ना, तो 500 भी नहीं बचते, इतने हालात ख़राब हैं, रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। ये पहले हालात ठीक थे, अभी ख़राब है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब लोगों का तो कोई हाल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही। हम कई लोग तो रोटी के भी मजबूर हो गए हैं। कहाँ ख़त्म हुई है महंगाई? महंगाई भी बहुत है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है। गरीबों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो गरीब हैं वो तो खुद ही गरीब हैं, अमीर हैं वो भी गरीब ज़ीरो हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद से आपको ले जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ चंद माह कबल तब्दीली आई है या लाई गई है। और गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी पाकिस्तान के लिए अहम तरीन इलाका था, लेकिन सीपेक के तनाजुर में अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान ही गवादर के बाद पाकिस्तान का दूसरा अहम तरीन ख़ित्ता करार दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के प्यारे, वफाशियार, मेहनती और जफाकश लोग क्या सोचते हैं कि उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो रही है या कि ख़राब हुई है। जितना हुकूमतें किया है उन लोगों ने इतना महंगाई नहीं किया था जितना इमरान खान आ गया। महंगाई आसमान में गया, गरीब लोग रोटी खाने के लिए गया है। लिहाजा हमें उम्मीद है इस जून में कुछ न कुछ महंगाई नीचे आएगी। बहुत अरसा हो गया, 3 साल बहुत होता, 3 साल में इनकी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि इमरान खान के जो दौर हुकूमत में जो महंगाई है वो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है तो इमरान खान कहाँ से लाएगा? बातें हैं ना, कर्जे तो आपको देना है, जिसने भी कर्जे लिया उसको आपको देना है। अगर कर्जे ना देते तो आपका मुल्क में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा होती, दिवालिया होता। महंगाई और बेरोज़गारी का जो वो है उसकी बुनियादी वजह आपके जो कोरोना का जो वबा या उस वजह से भी बढ़ गया है। गिलगित बल्तिस्तान से आपको पाकिस्तान के इंतहाई शमाल में अफ़गान सरहद पे वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चतराल ले चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का दूर दराज इलाका चतराल अपनी खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। तो सुनते हैं कि वहाँ के नौजवान, मज़दूर, किसान और दीगर तबक़ात के लोग मौजूदा इक़्तिसादी हालत के बारे में क्या कहते हैं। इस हुकूमत में गरीब गरीबतर होकर जा रहे और अमीर अमीरतर होकर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि बुरी हुकूमत भी इस हुकूमत से 1000 दर्जा बेहतर थी। और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो माशी हालत थी पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी बहुत ख़राब हो गई है। और हम कोशिश हमारी ये है कि आइंदे के लिए हम इमरान खान से अपने आप को दूर ही रखेंगे। 2018 से पहले चीज़ों की हालत बदरजहा बेहतर थी, उनकी कीमतें। अब एक आम आदमी बल्कि ख़ास आदमी की अप्रोच से इनकी कीमतें बढ़ के आसमान तक पहुंच चुकी हैं।
ये आवाम की भी राय है, ये दूसरे जो मुंतज़मीन हैं उनकी भी राय यही हो सकती है, क्योंकि वो सब खाते पीते हैं, इंसान हैं, इंसानी ज़रूरियात सबकी हैं। अगर कोई मुफ्त का खाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो अपनी जेब से खर्च करता है, जो अपने वसाइल से पैदा कर लेता है, उनके लिए 2018 के बाद अब तक मुश्किलात हैं, कुछ वसाइल महदूद हैं और चीज़ों की कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत पे तनकीद कर रही है कि ये उनकी पॉलिसी है। हमेशा होता आया है कि आने वाली हुकूमत माजी की हुकूमत पे तनकीद करती आई है। जो भी इक़्तिदार पे बैठती है, जो हुकूमत, जो सरकार भी आता है, वो माजी के हुक्मरानों पे तनकीद करता है। यही गुजारिश है कि बजाय उन पे उंगली उठाने के अपना लाहे अमल तरतीब दे के अवाम को उन मसाइल से निकाला जाए। अगर पहले कोई मसाइल थे। चतराल वो पसमानदा इलाका है जहाँ से यहाँ कोई कारखाना नहीं है, यहाँ कोई और मतलब का कोई वो है नहीं, एक रेवलेटेनेंट है। हमारे तिजाब बिरादरी सारे और डिस्ट्रिक्ट लाहौर पिंडी उधर से सामान लाते हैं, लेकिन साबिक़ा हुकूमत जो था वो हमारे लिए उस वक़्त इतना महंगाई नहीं था जो आजकल महंगाई है, और बाज़ार में सब कुछ महंगे हुए हैं। जो चीज़ें और डिस्ट्रिक्ट में महंगे हो रहे हैं वो इधर भी महंगे हो रहे हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए में सामान ला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मौजूदा इस दौर में बहुत महंगाई हुआ है, हम बर्दाश्त एहतजाज बर्दाश्त इसको भी बर्दाश्त नहीं करते। चतराल से अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का, जहाँ सुनामी बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत 5 साल पहले आ चुकी थी, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पेशावर के लोगों की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो गई है या कि 2018 की बनिस्बत ख़राब हो गई है? वहाँ के लोग मईशत की ख़राबी के लिए किसको ज़िम्मेदार करार देते हैं? तो आइए पेशावर के शहरियों की ज़ुबानी सुनते हैं। हुकूमत ने कहा नौकरियाँ मिलेंगी, नौकरी नहीं है, मजबूर हैं उस्ताद, काम नहीं है। अभी वो नौकरियाँ कहाँ हैं, नौकरियाँ कहाँ से हम करेंगे? और बस हालात हम लोगों के ख़राब हैं। लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हम लोग। पहले 3 माह दुकानें बंद थी, अभी फिर बंद हैं। अभी पता नहीं चल रहा है क्या होगा और क्या नहीं होगा। महंगाई और भी ज़्यादा हो रही है। हुकूमत से तवक्का दिया है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले हालात अच्छे थे, अभी इमरान खान के साथ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पहले बहुत अर्जानी थी, मतलब है कि सस्ताई दौर था, फसलें भी लोग उगाते थे, लोगों का अच्छा गुजारा हो जाता था। अब इतनी महंगाई है कि कोई कुछ करे या किसी को कोई प्रॉफिट बचती भी नहीं है, इतनी आमदन नहीं है जितना खर्चा है। आमदन से मतलब है कि 5-6 दिनों में बिल ख़त्म हो जाते हैं, बाकी 25-30 दिन हमारे सिर पे लगे थे। बच्चों को पालना, घर को संभालना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। देखें जी, 2018 में और 19 में लॉकडाउन है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। उसके असरात तो पूरी दुनिया में पड़ेंगे, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं पड़ेंगे, हर कारोबार पे उसके असरात पड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का अच्छा होगा, यही उम्मीद करते हैं। आने वाला बजट है, अब इसमें उम्मीद करते हैं, पूरी कौम ये उम्मीद कर रही है कि कोई ना कोई रिलीफ देंगे, टैक्सों में रिलीफ देंगे, बिजली के बिल, गैस, चीनी, आटा, खाने अशिया खुर्दनोश में गवर्नमेंट रिलीफ देगी इंशाल्लाह। उम्मीद है। हमने तो पाकिस्तान में रहना, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो इस वतन से मोहब्बत करते हैं। अब हालात अच्छे हैं कि बुरे, यहाँ हमने रहना है, हमने तो हिंदुस्तान नहीं जाना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में रिलीफ होगा। बजट के हवाले से ये है कि जी ये बजट वो आम सा बजट है जो कि पहले हुआ करता है, जैसे दावे पहले भी घूमते करती थी, ये भी दावे कर रहे हैं। असल में बात यह है कि आजकल देखें तो हुकूमत ये कह रही है कि जी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया है और ये अच्छा हो गया और वो अच्छा हो गया। अच्छा तो तब होगा जब नीचे आवाम तक, हम तक उसका रिलीफ आएगा। आवाम तक रिलीफ नहीं है। चीनी वही 110 रुपये किलो है, घी वही 300 रुपये किलो है, ठीक है जी। तो महंगाई तो वैसी है, रिलीफ तो तब होगा जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद तो है, अल्लाह करे कि ये कामयाब हों और आवाम को रिलीफ मिले। वहाँ पे जो टैक्स था, इनकम टैक्स, वो 30,600 रुपये था।
सितंबर में जब मैंने पे स्लिप देखा तो 40,410 रुपये था, और अभी जब मैंने रिसेंटली पे स्लिप निकाला तो वहाँ पे मेरी तनख्वाह पे जो इनकम टैक्स है वो है 48,900। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 3 साल से मेरी तनख्वाह में कोई इंक्रीज़ नहीं हुई किसी भी बजट में, क्योंकि ग्रेड 20 से ऊपर तनख्वाह इंक्रीज़ नहीं हुई, और टैक्स मेरे ऊपर 14,556 से लेके 48,900 रुपये तक पहुंच गया। इट मींस कि मेरी तनख्वाह में 14,556 से 48,900 का अंदाज़ा लगा दी, इतनी कमी आई है। तो ये मेरी तनख्वाह कम हो गई है, ज़्यादा नहीं हुई 3 साल में। तो इसमें आप देखें कि मैं कैसे गुजारा करूँ। ये बिल्कुल भी गैर मकबूल और गैर अखलाकी बात है कि आप एक तरफ तो आप पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 25%, दूसरी तरफ जामियात के मुलाजमीन का आप तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय 45% से लेके 52% तक आप उसमें कमी कर रहे हैं। अब ये कटौती कर रहे हैं हमारे 5-6 हज़ार क्लास 4 के और 10-12 हज़ार हमारे क्लास 3 एम्प्लॉइज़ के, ये काटें तो इस पे हम क्या करेंगे? हम क्या डाके मारें या हम चोरियां करें? हुकूमत तो हमें इसलिए मजबूर कर रही है कि आप लोग जाएं और कत्ल गारत हो रही है। हमारे बच्चों पे फीसें उन्होंने बढ़ा दी है, हमारे बच्चे अब तालीम लेने से कासिर हैं, हम तालीम में बच्चों को एडमिट नहीं करवा सकते, तो हम क्या करें? आप नाज़रीन, एक तरफ इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों में डिस्कस होते तरक्की के अदाद शुमार हैं, यहाँ हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, और दूसरी तरफ गुर्बत, बेरोज़गारी, माशी बदहाली और तबाही के शिकार आवाम है। हमने कोशिश की कि आपको एक मुतवाज़िन सूरत हाल से आगाह कर सकें और बराह रास्त आवाम की ज़ुबानी आपको सुना सकें कि उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हुई है या ख़राब हुई है, और ये कि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिसादी पॉलिसियों के हवाले से वो पुरुमीद हैं या कि मायूस। हम किस हद तक इस कोशिश में कामयाब हुए हैं, इसका फ़ैसला आप कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।